वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी एडिशन टॉपिक स्टार्ट किया था, विच इज़ द बाइनरी अरिथमेटिक। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाइनरी सब्सट्रैक्शन है ना उसके रूल्स लेंगे एंड देन विल सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन द बाइनरी सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बाइनरी सब्सट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक और टाइप का बाइनरी एडिशन लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि फ्रैक्शनल नंबर आपको यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, तो इस बाइनरी एडिशन में आपको फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन करना है। ठीक है, सो वी गेट द टू नंबर्स, फर्स्ट इज अ ए एंड सेकंड नंबर इज टेकन एज अ b and we have to add a plus b and result will be generated according to the addition of these two numbers. So first is a number which is given as 1101. This is the decimal point 0.101 which is the binary number. ठीक है, तो binary number दिया हुआ है directly. Second number b number is given 0101 dot 100, that is the b, and we have to add the this a plus b. Okay, so we start with the solution. First write down the given number. That first number is a, okay, which is 1101. ठीक है, 1101 which is in binary form, its decimal form is 13. Okay, and dot 101. Okay, so second number b will be the 0101 dot 100. Okay, so this is the b number and we have to add both these number. So we start with the first LSB bit. Okay, so first number is 1 plus 0 will be added. So according to the binary addition, when we add 1 plus 0, so the sum is 1. Second number will be the 0 plus 0, so the summation is 0. Third number is 1 plus 1. This rule is some different. So 1 plus 1 is nothing but the sum is 0 and the carry bit will be a 1. So we are taking the carry bit, okay, which is 1 for the next step. Okay, तो इसे हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी बिट को. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट सम, दैट इज S0, this is the S1, this is the S2. Okay, then in next number is 1 plus 1. Okay, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, 1 plus 1 is nothing but the sum is 0 and the carry is 1. So that carry will be here. तो कैरी को हमने क्या कर दिया है, कैरी फॉरवर्ड. फर्स्ट विल डू द 1 plus 1. 1 plus 1 is 0, carry is 1, so that carry will be carry forward to the next step, and this 0 is added with this one. 0 plus 1, sum is 1. Okay, so in this way we solve this problem. Then next is 0 plus 0. Okay, so answer will be a 0. So 0 plus this one, the sum is 1. Okay, so it is a S3, it is a S4. Okay, the next bit is 1 plus 1. Again 1 plus 1 is 0, summation is 0, that is S5 is there, and the carry will be carry forward to the next step. ठीक है, then next is 1 plus 0, it is 1, this addition is 1. Again this 1 plus 1 is again summation is 0 and the carry is carry forward as a 1. Okay, and that carry will be taken as it is in the as a final carry. Okay, so in this way we add the two fractional binary numbers. Okay, then the final answer can be written as, therefore this first number, write the first number 1101 dot 101, second 0101 dot 100 is equal to this number. Okay, so which is nothing but the this 1001 0.001, that is the final answer. Okay, तो यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है. ठीक है, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया है, जो हमारा ऑलरेडी नंबर सिस्टम में हुआ है. हाउ वी कन्वर्ट द बाइनरी इनटू द
decimal and these both the numbers are get added and this will be the final answer. मीन्स इस तरह से आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. ठीक है, ये बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करोगे आप डेसिमल में. ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो आप टैली कर सकते हो कि दैट इज़ करेक्ट और नॉट. सो दैट इज़ द फाइनल आंसर. सो इस तरह से आप यहाँ पे फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर का भी एडिशन कर सकते हो. ठीक है, देन वी स्टार्ट विद द बाइनरी सब्सट्रैक्शन. ओके, तो जिस तरह से हमने बाइनरी एडिशन के कुछ रूल्स देखे वैसे ही रूल्स यहाँ पे टेबल में दिए गए विच इज़ फॉर द बाइनरी सब्सट्रैक्शन. व्हेन a is the first number and b is the second number and we have to add a minus b. okay, so यहाँ पे एग्जांपल दिया a0 minus b0. so the output is the difference and borrow will be generated. जैसे एडिशन में सम एंड कैरी विल बी जनरेटेड, सेम वे इन सब्सट्रैक्शन दिस डिफरेंस एंड बोरो विल बी जनरेटेड. ओके, तो सब्सट्रैक्शन के रूल्स थोड़े अलग है. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए. तो अभी हमारा एम है यहाँ पे a0 माइनस b0. ठीक है, सो सपोज फर्स्ट कंडीशन इज दैट बोथ द नंबर्स आर जीरो. a0 इज जीरो, b0 इज जीरो. व्हेन वी सब्सट्रैक्ट जीरो विथ जीरो, जीरो माइनस जीरो इज नथिंग बट द डिफरेंस इज जीरो एंड बोरो इज जीरो. ठीक है, then second condition is a0 is 0, b0 is 1. when 0 minus 1 is there, so difference is 1 and borrow is 1. तो ये जो सेकंड रूल है यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए. ठीक है, क्योंकि ये छोटा नंबर है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 1 इज़ द लार्जेस्ट नंबर. ठीक है, तो ये माइनस नहीं होगा. दैट्स वाई वी टेक द बोरो विच इज़ 1. दैट्स वाई डिफरेंस इज़ 1 एंड बोरो इज़ 1. जैसे हम डे टू डे लाइफ में जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, तो माइनस नहीं होगा. ठीक है, उससे लार्जेस्ट नंबर माइनस नहीं होगा. दैट्स वाई वी टेक द बोरो. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड. a0 इज 1, b0 इज 0. सो 1 माइनस 0 इज डिफरेंस इज 1 एंड द बोरो इज 0. ओके, क्योंकि a means 1 is the largest number and it can be easily subtracted from the smallest number. Okay, so difference is 1 and borrow is 0. And the fourth condition is, suppose a0 is 1, b0 is 1. Okay, so 1 minus 1, the output is means difference is 0 and the borrow is 0. So these are the main 4 rules for the binary subtraction. ठीक है, तो ये आपको अगर पता है तो आप सिंपली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बाइनरी सब्सट्रैक्शन का, वेदर इट इज़ अ 4 बिट नंबर, 8 बिट नंबर, 12 और 16 बिट. ठीक है, तो पेपर में आपको मैक्सिमम 4 या 8 बिट तक बाइनरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आएगा. ठीक है, सो इस तरह से आप ये रूल ध्यान में रखिए तो आप बाइनरी सब्सट्रैक्शन के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सिर्फ यहाँ पे सेकंड जो रूल है, जैसे हमारा 1+1 का रूल है बाइनरी एडिशन में, इट विल बी अ 0 एंड कैरी इज़ 1. ठीक है, तो सेम ये यहाँ पे 0 माइनस 1. ठीक है, क्योंकि 0 स्मॉलेस्ट नंबर है तो वो माइनस नहीं होगा. तो दैट्स वाई वी टेक द डिफरेंस एज अ 1 एंड बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट बीट. ठीक है, तो ये रूल आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा. तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द बाइनरी सब्सट्रैक्शन फ्रॉम इट. So perform 3 minus 2. Okay, 3 is in decimal form and this 2 is given in the decimal form because the base of decimal number system is 10. Okay, so a is 3 and b is 2. So we have to subtract a minus b means 3 minus 2 will be the 1. Okay, so answer will be a 1. That is in decimal. Okay, but we have to convert this decimal into the binary first. So we start with the solution. First we take the first number a as a 3, b as a 2. Convert this decimal number into the 4-bit binary digit. Okay, or 4-bit binary bits. So in that 3 can be represented in the binary form, that is 0 0 1 1. ठीक है, जैसे हमने टेबल में देखा था. ठीक है, then second 2 can be represented in binary form 0 0 1 0. Okay, so in this case a is 3 and
b इज़ 2. ओके, तो यहाँ पे हमने बीट बाय बीट हमें सब्सट्रैक्शन करना है. सो दिस इज़ a0 b0, सेम वे a1 b1. ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. एंड द रिजल्ट विल बी द डिफरेंस बिट. इट इज़ डिनोटेड बाय d0 d1 d2 एंड d3. ठीक है, तो अभी हम सेम LSB से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वी कंसिडर द LSB बिट. फर्स्ट इज 1 minus 0. Okay, so 1 minus 0 is difference is 1. Okay, then second a1 minus b1, which is 1 minus 1. So 1 minus 1 is a 0, difference is 0, borrow is 0. Next bit a2 is 0, b2 is 0. So 0 minus 0, the difference is 0 and the borrow is 0. Okay, then a3 minus b3, which is 0 minus 0. Okay, so in that case again difference is 0 and borrow is 0. So that's why borrow is carry forward. ठीक है, and that can be take as a final answer. ठीक है, so जो final answer हमें मिला है वो 0 0 0 1, which is nothing but the 1 in decimal. ठीक है, तो जैसे हम डेसिमल में 3 minus 2 करते हैं तो आंसर विल बी 1. सेम आंसर विल बी ऑब्टेन इन बाइनरी फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे वही स्टेप दिए. फर्स्ट a0 माइनस b0. ठीक है, दिस a0 माइनस b0. देन उससे आपको मिला ये डिफरेंस d0 फर्स्ट. ठीक है, d1 दैट इज a1 माइनस b1, दिस a1 माइनस b1 विच इज़ 1 माइनस 1. ठीक है, तो ये स्टेप दिया है यहाँ पे. थर्ड a2 माइनस b2. ठीक है, दैट इज़ 0 माइनस 0. ठीक है, एंड लास्ट वन a3 माइनस b3 विच इज़ 0 माइनस 0. सो दैट इज़ 0. ठीक है, तो इस तरह से हमें फाइनल आंसर लिखना है. देयरफॉर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू आपको ये आंसर लिखना है 0 0 0 1. ठीक है, 2 इज़ द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम. सो दैट इज़ द फाइनल आंसर. ठीक है, अगर फाइनल आंसर आपने नहीं लिखा तो 1 मार्क्स लेस हो जाएगा. तो इस तरह से आपको बाइनरी सब्सट्रैक्शन करना है. ठीक है, अगेन वी टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए. सो इन नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे हमने रूल देखा था कि 0 माइनस 1. सो एट दैट टाइम द डिफरेंस इज़ 1 एंड बोरो इज़ 1. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में ये रूल आपको एक्सप्लेन हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लेते हैं a is your 0 1 0 1 and b is a 0 1 1 0, which is a and b, and we have to subtract a minus b. okay, so already binary फॉर्म में दिया है. ठीक है, तो हमें कुछ उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी 4 बिट फॉर्म में दिया है a and b. ओके, सो इन सॉल्यूशन वी कैन राइट डायरेक्टली दिस नंबर. सो दिस इज a which is 0 1 1 0 and b is second number 0 1 1 0. ठीक है, so we have to subtract both the number. okay, so we start with the first LSB. okay, so in that we consider first a0 minus b0. okay, so 0 minus 1, so difference is 1 and the borrow is 0. so we obtain the first difference bit, that is d0. ठीक है, second bit is a1 minus b1. ठीक है, so 1 minus 0. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 minus 0 इज़ नथिंग बट जैसे हमने अभी रूल देखे टेबल में. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में हमारा बोरो जनरेट हुआ था 0 माइनस 1 का. ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. ठीक है, जैसे 0 माइनस 1 में आपका जो डिफरेंस है 1 है एंड बोरो इज़ 1. ठीक है, तो 0 माइनस 1, तो ये आपका डिफरेंस आ गया यहाँ पे d0. ठीक है, एंड दैट बोरो विल बी कंसिडर फॉर द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, तो अभी a1 माइनस b1 में क्या होगा, फर्स्ट विल सॉल्व द दिस 1 माइनस 0. सो दिस 1 माइनस 0 इज़ नथिंग बट योर 1. ठीक है,
and this 1 is minus with this borrow, so 1 minus 1 0, so we will get the difference 0. Okay, so that is the D1 bit. Okay, in third step we minus the A1 A2 minus B2, so that is 1 minus 1, the difference is 0 and borrow is 0, that is a D2 bit. Okay, and in last A3 minus B3, 0 minus 0 will be 0, that is the difference, and the borrow is 0, so that is a D3 bit. Okay, so in this way we get the answer. ठीक है, तो सिर्फ ये यहाँ पे चेंज था 0 minus 1, ठीक है, क्योंकि 0 smallest and 1 is largest digit, so it cannot be possible to subtract it. ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या किया, बोरो लिया है, जैसे हम जनरल सब्सट्रैक्शन में करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये पहले सॉल्व करना है 0 minus 1, तो आंसर जो आएगा आपका सपोज 1 1, दिस 1 इज़ कैरी फॉरवर्ड. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में पहले आपको ये सब्सट्रैक्शन करना है, 1 minus 0 इज़ 1, दिस 1 इज सब्सट्रैक्टेड विद दिस 1. ठीक है, so 1 minus 1 is again 0. Okay, so in this way you can solve the problems on the subtraction. ठीक है, तो इस तरह से आप और भी कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, जैसे आप ये नंबर चेंज करोगे एक नया प्रॉब्लम फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो 4 बिट का आप प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, बुक में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए. सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो एक फ्रैक्शनल नंबर का है. ठीक है, अभी हम फ्रैक्शनल जो परफॉर्म करना है हमें सब्सट्रैक्शन, वो है फ्रैक्शनल नंबर का. ठीक है, जैसे हमने बाइनरी एडिशन में फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स का एडिशन देखा, सेम यहाँ पे फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर का सब्सट्रैक्शन लेना है हमें सेम वे से. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों नंबर दिए, फर्स्ट नंबर इज कंसिडर एज अ ए. ओके, सेकंड नंबर इज कंसिडर एज अ बी, एंड वी हैव टू परफॉर्म ए माइनस बी. Okay, so already numbers are given in the binary form, so in solution first we write the first number, that is a. Okay, which is given as a 1011 dot, so we put the some space in between this number where the decimal point is there. Okay, and second part is 010, so that is 010. Okay, b number is given which is 0110, then 101. Okay, so both these number are given and we have to subtract that number. So we start with the first LSB and use the rule of subtraction जो अभी हमने टेबल में देखा है. ठीक है, so first is 0 minus 1. Okay, so again this is the odd rule, so 0 minus 1, difference is 1 and the borrow is 1. ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ गया D0 as a 1 and we take the borrow, so that's why we are writing the minus 1 here. Okay, so in second step first we solve the 1 minus 0, so 1 minus 0 is 1, this 1 minus this borrow 1, so 1 minus 1 is 0, so that is a D1. ठीक है, next is again 0 minus 1, that is not possible, so we can borrow the 1 from the next step. Okay, so this 0 minus 1 is again difference is 1 and borrow is 1. Okay, so that is a D2. Then this 1 minus 0 is 1. Okay, this 1 minus 1 is again difference is 0 and borrow is 0. Okay, next bit is this 1 minus 1, difference is 0, borrow is 0. Again this 0 minus 1, it is not possible, take the borrow, so 0 minus 1, difference is 1 and this borrow is written over here. Then next step 1 minus 0, first we solve 1 minus 0, so it will be a 1, this 1 minus this borrow 1 will be result in difference 0 and the borrow 0 will be generated. Okay, so इस तरह से आप बाइनरी सब्सट्रैक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. आपको बिट बाय बिट सब्सट्रैक्शन करना है ठीक से, तो उसके लिए जो टेबल है रूल्स का बाइनरी सब्सट्रैक्शन का वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बिट भी आपका गलत हो गया सो दैट आंसर विल बी अ रॉन्ग, सो दैट हैज़ अ 0 मार्क्स. ठीक है,
तो इस तरह से फाइनल आंसर आपको लिखना है। देयरफॉर ये नंबर लिखना आपको फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू दिस इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर को कन्वर्ट किया है डेसिमल नंबर में, ठीक है। और डेसिमल सब्सट्रैक्शन आप सब लोगों को पता है, ठीक है। तो अगर आप सिंपल जो जनरल सब्सट्रैक्शन हम यूज़ करते रूल्स, उससे ये सॉल्व किया, तो ये जो फाइनल आंसर है दिस आंसर एंड दिस आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज निगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए या बाइनरी सिस्टम में निगेटिव नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। सपोज जैसे अभी टेम्परेचर सेंस करना है या टेम्परेचर सेंसर आप यूज़ कर रहे हो, सो टेम्परेचर हैज़ बोथ द वैल्यूज पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, ठीक है। अगर बहुत कोल्ड है देन टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन द माइनस, ओके, इन निगेटिव टर्म्स, सो दैट नंबर आर निगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो वो नंबर्स भी कंप्यूटर में प्रोसेस होंगे, सो एट दैट टाइम वी रिक्वायर द negative number representation of binary system because computer will work on the digital data, okay. Computer will only understand the binary numbers which is in ones and zeros form, ठीक है। तो वहाँ पे हम माइनस या निगेटिव नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई निगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी सिस्टम विल बी अ नीडेड, ओके। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट साइन मैग्नीट्यूड कोड और SM रिप्रेजेंटेशन, सेकंड वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड एंड सेकंड इज अ टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है। तो ये आपको वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड दोनों भी डिटेल में स्टडी करने, इस पे प्रॉब्लम आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये मेन सिलेबस के टॉपिक है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, ठीक है। और इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो हम आने वाले लेक्चर्स में इसको लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे साइन मैग्नीट्यूड कोड, ठीक है, या SM इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अभी बाइनरी नंबर को अगर हमें विद साइन एंड अनसाइन नंबर के साथ मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर में अगर नोट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 8 बिट नंबर इज सपोज गिवन, ठीक है। So it will start from B0 to B7, okay, total. So there are total 8 bits are there, but जो last MSB bit है यहाँ पे B7 that represents the sign bit S, ठीक है, MSB which is at the LHS side, ठीक है। तो आपको पता है कि MSB हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है एंड LSB एट द राइट हैंड साइड, ठीक है। So this is an example. If suppose 4 bits are given, so at that time same last bit that is B0, then B1, B2 and B3, okay. So this B3 bit represents the sign, okay, and other these 3 numbers represent the magnitude, okay. So that's why its name is sign magnitude. It consists of sign which is the MSB bit, ठीक है, एंड अदर बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 बिट है, सो B0 to B6 रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट 8 बिट नंबर, ठीक है। फिर उससे हमें उसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू पता चलेगा एंड लास्ट डिजिट रिप्रेजेंट द साइन वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है साइन मैग्नीट्यूड नंबर का टू रिप्रेजेंट द निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल रूल है, दिस S बिट मीन्स दिस B7 बिट, और जैसे हमने B3 बिट देखा 4 बिट फॉर्म में, सो इट विल बी अ 0 देन इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो सिंपल रूल है, अगर पॉजिटिव नंबर आपको नोट करना है तो MSB बिट वहाँ पे क्या रहेगा 0। जैसे सपोज मुझे अभी +5 यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो 4 बिट फॉर्म में 5 को किस तरह से लिख पाओगे आप 0 1 0 1, ओके। So this is in 4 bit form, so we add the 0 at the MSB, okay. This 0 represents the positive number, okay. तो ये आपका साइन बिट है एंड दिस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर, ठीक है। 0 1 0 is the 5 and this sign as a 0 will represent the
it is a positive number. ठीक है. Suppose in same way we have to recognize the negative number. So when S bit is 1 means the MSB bit will be 1, it denotes the negative number. Suppose for same example, if you take the or represent the -5, in that case 0 1 0 1 in 4 bit form is represent the magnitude, and this MSB bit which is 1, okay, this denotes the sign. ठीक है. तो अगर यहाँ पे 1 है MSB bit means it indicates the it is a negative number. ठीक है, तो वो negative number है. ठीक है. and other 4 bits represents the its magnitude, that it is a 5. ठीक है. Same way we can represent the 2 -2, so it will be a 0 0 1 0 in 4 bit form. If it is a minus, we can write the 1 at the MSB, so it will be the -2. Okay. Same way +2 can be represented by 0 0 1 0 and this 0. ठीक है, मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है. जैसे हम जो पॉजिटिव नंबर रहते हैं तो उसको हम साइन नहीं देते. ठीक है, हर बार हम उसको साइन नहीं, ओनली 2 जब हम लिखते हैं मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, 0 ऐड किया है. तो आपको पता है कि LHS साइड में अगर हम कितने भी ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ये 2 ही रहेगा. ठीक है. बट अगर मैंने यहाँ पे RHS में 0 ऐड कर दिया तो आपको ये पता है ये बन जाएगा आपका 4. ठीक है, 0 1 0 0 इज मीन्स अ 4. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है कि LHS साइड में अगर आप 0 ऐड करते हो तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा नंबर का कभी भी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव नंबर के लिए हम कभी भी साइन नहीं देते. ठीक है, तो जो इंटीजर फॉर्म में हम नंबर यूज़ करते हैं डेसिमल में, दे आर ऑल पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए MSB में क्या रहेगा, 0. अगर मैंने यहाँ पे 0 ऐड किया तो नंबर का वैल्यू सेम रहेगा. ठीक है, बट फॉर नेगेटिव नंबर वी ऐड द 1 एट द MSB, सो इट इंडिकेट्स द नेगेटिव नंबर. ठीक है, सो दिस इज़ द साइन मैग्नीट्यूड कोड रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. ठीक है, तो इस तरह से सिंपली आपको ध्यान में रखना है, अगर S bit मीन्स MSB विल बी 0, इट इंडिकेट्स द पॉजिटिव नंबर. व्हेन द MSB दिस बिट will be a 1, so it denotes the negative number. So in this way we can represent the positive as well as negative number. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 8 बिट का B02 B7. so this B02 B6 is nothing but the magnitude, okay, and this B7 will be the 0 which represents the sign. Okay, so 0 means it will be a negative number, it will denote the this negative number. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये साइन मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.